our participants and all our honored guests, this second day of Joseph Fest 2011. There is no better way to begin the day than with prayer. So all are requested to please stand as Vaibhav Maheshwari leads us in prayer. At the beginning of this day, I turn to you, my Lord and Father, who look upon me as your loving child. Grant me to desire always what is most acceptable to you, that your will may be mine and my will may be conformed to yours. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. We offer you, O God, our studies and our prayers, and we beg you to enlighten our minds and make us ever pleasing to you. Amen. Please stand in attention for the pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I'm proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and honor, and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their prosperity and well-being alone lies my happiness. On day 2 of Joseph Fest, with the Lord of warmth, I welcome all those assembled here to imbibe from and enrich this current of creativity and expression. Joseph Fest hopes to channel free thought and unrestrained ingenuity, and the students participating in various events that make up this day shall most definitely exhibit and assert these traits via their performances. Therefore, let us unite again to sculpt our imaginations and pour it into the molds of reality, to lend voice and give color to the affinity for art that is inherent in all of us. Ladies and gentlemen, we must not judge each day by the harvest we reap, but by the seeds we sow. As I do believe, if we are not filled with enthusiasm, then all our potential will come to naught. The students participating in the various events that make up this day shall add glamour and charisma to the institutional cultural fest, which reflects diversified interests. The path may be difficult, but I believe that nothing is impossible if we set our minds to achieve and are willing to put in unceasing efforts. Now, to bring my speech to an end, I assure you all on behalf of the St. Joseph's family that today, just like yesterday, you will be a witness to stiff competition and exemplary performances. I'm very sure that it will render you all speechless and spellbound. Thank you and have a blessed day. Good morning, ladies and gentlemen. Our first on-stage event for the day is the Hindi debate. To quote a French essayist, it is better to debate a question without settling it than to settle a question without debating it. A debate is basically a verbal argument that is conducted within a set framework. To express oneself in front of an audience requires confidence and courage. The courage to overcome stage fright and to persuade others to the veracity of their arguments. The chairperson for the event is Mr. Shyamal Narayan. The judges for the event are Dr. Archana Tripathi, Associate Professor in S.S. Khanna Degree College, Dr. Lalsa Yadav, Lecturer in Hindi Department, Allahabad University, and Dr. Sood Narayan, Lecturer in Hindi Department, Allahabad University. The rules for the event are:
There shall be 2 participants from each school, one for and the other against the motion. Each participant will be given 4 minutes for the main speech. There will be a warning bell at 3 minutes. Then each participant will be subjected to a 1-minute rebuttal. Only participants will be allowed to interject. The topic for the debate will be, क्या हिंदी भाषा भारत को एक सूत्र में बांध पाई है? The parameters for the event are matter 10 marks, delivery 10 marks, diction 10 marks, rebuttal 10 marks, and memory 10 marks. Thank you. आप सभी को मेरी ओर से सुप्रभात। अभी एक चीज के ऊपर मेरा ध्यान गया। आज की कार्रवाई, जोसेफ फेस्ट की कार्रवाई, क्योंकि हिंदी के वाद विवाद से आरंभ हो रही है, तो इसलिए ये समीचीन है कि इसकी सारी कार्रवाई हम जहां तक हो सके संभव हिंदी में ही संपादित करें। तो आप सभी का इस प्रातःकालीन सभा में स्वागत है। हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि आज की जो हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का जो विषय है वो अपने आप में बहुत सारगर्भित है और बहुत रोचक भी है, और इसके ऊपर हमें बहुत अच्छे तर्क वितर्क सुनने को मिलेंगे। तो अगर अनुमति हो आयोजकों की तो हम इस कार्रवाई को आरंभ करते हैं। फादर, अनुमति। जो तो आपके सामने इस हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता के जो नियम हैं जिसके अंतर्गत इस प्रतियोगिता को संपादित किया जाएगा उसका खुलासा किया जा चुका है, लेकिन फिर भी सभी प्रतिभागियों के लिए मैं एक दफा इन नियमों को जल्दी से उद्धृत कर देता हूं। यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो जल्दी से पूछ लेगा। जैसा कि मुझे बताया गया है, आज का विषय जिसके ऊपर चर्चा होने जा रही है वो है कि क्या हिंदी भाषा भारत को एक सूत्र में बांध पाई है। प्रत्येक वक्ता को अपनी बात कहने के लिए, अपने वक्तव्य के लिए 4 मिनटों का समय दिया जा रहा है। 3 मिनटों के बाद एक चेतावनी घंटी बजेगी, जिससे कि आपको मालूम रहे कि अब आपके पास मात्र 60 सेकंड और हैं जिसमें आपको अपनी बात समाप्त करनी है। 4 मिनट के अंत पर एक प्रश्नोत्तरी काल होगा जिसकी अवधि 1 मिनट की होगी। इस 1 मिनट के प्रश्नोत्तरी काल में प्रश्न पूछे जाएंगे वक्ता से, और जैसा मुझे बताया गया है कि सदन से प्रश्न आमंत्रित नहीं किए जाएंगे, केवल जो प्रतिभागी गण हैं वो ही प्रश्न कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि अक्सर हम ये देखते हैं कि वाद विवाद में लोग प्रश्न के नाम पे अपने ही वक्तव्य का कुछ हिस्सा या अपना ही भाषण देने लगते हैं। कृपया अपने प्रश्नों को संक्षिप्त रखिए, वाद विवाद की मर्यादा को कायम रखते हुए सही ऊर्जा के साथ और सही भावना के साथ प्रश्न को करिए, और इतना समुचित समय वक्ता को भी दीजिए कि वो आपके प्रश्न का उत्तर दे सके। प्रश्नोत्तर का मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि यदि उसकी बात से कोई बात उपजी है, उसमें कोई स्पष्टीकरण चाहिए या कोई प्रश्न पूछ करके आप उसके बात को आप गलत साबित करना चाहते हैं तो उसकी भी अनुमति है। लेकिन केवल अगर आप स्वयं ही बोलते रहेंगे और वक्ता को अपनी बात कहने का अवसर ही नहीं मिलेगा तो पूरा प्रश्नोत्तरी काल जो है वो निरर्थक हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ से ध्यान दूंगा और इसका पूरा नियंत्रण मेरा होगा। यदि मुझे पाया गया कि प्रश्नोत्तरी काल में अनर्गल प्रलाप हो रहा है तो मैं प्रश्न को मैं वहीं बीच में मैं रोक भी सकता हूँ, और केवल एक प्रश्न की अनुमति होगी अगर समय अनुमति देता है और अभी समय है और एक किसी प्रश्नोत्तर का समय समाप्त होने के बाद भी कुछ समय शेष रहता है तो अगर देखा जाएगा आवश्यकता होगी तो दूसरे किसी से भी प्रश्न को हम आमंत्रित कर सकते हैं। पहले बता गया, ये चीज बता दी गई है कि जो वक्तागण हैं उनको हमारे पास बहुत ही अच्छा एक निर्णायक मंडल है, तो किन आयामों के ऊपर न्याय किया जाएगा, किन आयामों के ऊपर अंक प्रदान किए जाएंगे वो आपको बताया जा चुका है। आपको आपके वक्तव्य के ऊपर, यानी जो आपका तथ्य है जिसे अंग्रेजी में मैटर कहा जाता है, उसके ऊपर 10 अंक हैं। आपके बोलने की शैली पर 10 अंक हैं, डिक्शन के ऊपर 10 अंक हैं,
याददाश्त के ऊपर 10 अंक हैं और प्रश्नोत्तर काल में जिस प्रकार से आप प्रश्नों का उत्तर देते हैं उसके ऊपर भी 10 अंक हैं। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि निर्णायक गण का निर्णय अंतिम और सर्वोपरि होता है, वो सबको स्वीकार्य होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम एक बहुत ही रोचक वाद विवाद प्रतियोगिता को देखने जा रहे हैं, मुझे आदेश मिला है कि मैं सबसे एक दफा उनका परिचय प्राप्त कर लूं। ये अच्छी बात भी है, एक अच्छी परंपरा होगी। तो मेरे सबसे बाएं जो प्रतिभागी बैठी हैं वो गर्ल्स हाई स्कूल की हैं। कृपया अपना परिचय देंगे। मैं गर्ल्स हाई स्कूल से अनन्या मिश्रा हूँ। अनन्या मिश्रा, आपका स्वागत है। आपकी सहभागी? नमस्कार, मैं प्रज्ञा अस्थाना गर्ल्स हाई स्कूल एंड कॉलेज से। प्रज्ञा अस्थाना और अनन्या मिश्रा, दोनों के लिए जोरदार तालियां। अनन्या और प्रज्ञा, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप बहुत अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन करें और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। उसके बाद से हैं बॉयज हाई स्कूल। मैं बॉयज हाई स्कूल से शुभम शुक्ला। सुप्रभात, मैं शांभव पांडे बॉयज हाई स्कूल से। शुभम और शांभव बॉयज हाई स्कूल से बहुत बहुत स्वागत है आपका। सेंट मेरीज कॉन्वेंट से। नमस्कार, मैं इंगिता जायसवाल सेंट मेरीज कॉलेज से।